अभी तक भी हैं मंत्री कहे जाएंगे, वो तमाम वहां मौजूद हैं, वो तमाम सांसद वहां पर मौजूद हैं। नितिन गडकरी को आपने देखा, प्रकाश जावड़ेकर को देख रहे हैं, तो वहीं दूसरे अपने स्क्रीन के हिस्से में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के निवास से लगातार सांसद जो मुलाकात कर चुके हैं, उनका निकलने का, उनका वहां से जाने का सिलसिला अभी जारी है। ये एक तरह से कह सकते हैं शपथ ग्रहण से पहले की आखिरी मुलाकात प्रधानमंत्री से यहां से होगी, और इस मुलाकात के बाद सभी तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये लोग सीधे राष्ट्रपति भवन ही पहुंच रहे हैं, जहां पे शपथ ग्रहण समारोह होना है। That's right. So these visuals of the forecourt on one part of your screen of the Rashtrapati Bhavan, where the swearing-in ceremony is just about an hour and a few minutes away. People have started arriving there, which includes a number of heads of states, heads of governments who've been invited, the BIMSTEC countries. Mauritius has been invited. Kyrgyzstan, who's the current president of the SCO, has been invited. Also, of course, the ministers who will take oath have to be there, and a lot of other guests have been invited, which includes various constitutional authorities like governors, lieutenant governors, chief ministers of various states, diplomats, serving ambassadors who are ambassadors here in India have been invited, and those people are arriving at the आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कुणाल संगमा को, वो पहुंच चुके हैं वहां पर, और उनकी बहन अगाथा संगमा भी उनके साथ हैं। Yeah. So these visuals are playing out. Mr. Bhattacharya, a historic event we are going to witness. What a beautiful view this is of the Rashtrapati Bhavan. What a majestic building it is. Absolutely. Yeah. And I think, it's a matter of detail that this will be President Ramnath Kovind's first big swearing-in ceremony. It's going to be, I think, the grandest affair of swearing in of all cabinets till now. Absolutely. Not just in numbers, but the kind of the various people who've been included. Earlier, it used to be more of, in the previous days, a government affair and, really a Sarkari affair. But now they broad-based it. There are Bollywood personalities there. There are people from common walks of life. There are political leaders, of course, who are there. What a beautiful view of the Rashtrapati Bhavan. Ravi Shankar Prasad, the MP, newly elected MP from Patna Sahib, who is arriving. He was a minister in the previous government, is a minister in the previous government technically. Ravi Shankar Prasad arriving on the at the forecourt of रविशंकर प्रसाद की आप बात कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद जी पहले राज्यसभा के मेंबर थे। जी। इस बार उन्होंने लोकसभा में किया, शत्रुघ्न सिन्हा को हरा के आए हैं। करेक्ट। नाउ इफ यू आर काइंड ऑफ नॉट ए जायंट किलर बट ए मिनी जायंट किलर, और राज्यसभा से आप लोकसभा आ गए हैं, तो मैं मानता हूं कि ये ऐसे जो इंफॉर्मेशन इनपुट्स जरूर जब मिनिस्ट्री फॉर्मेशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने में ये इनका इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। जी। All right, I'm told my colleague Shailendra Mishra has once again joined us over the phone line from outside 7 LKM. That's the Prime Minister's home office. Shailendra, can you hear me? Shailendra? जी बिल्कुल बताएं। हाँ जी, आप बताएं कि क्या वो बैठक तो काफी देर हो गई, खत्म हो गई थी, सब लोग निकल गए हैं वहां से? जी शैलेंद्र, मेरी आवाज? तकरीबन सभी जो संभावित मंत्री यहाँ पर चाय के लिए बुलाए गए थे, जी प्लीज फरमाएं। यहाँ पर बुलाए गए थे वो 7 LKM से अब निकल चुके हैं। तमाम ऐसे नाम हैं जो आप कह सकते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। नित्यानंद राय जो बिहार के बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर अभी तो अब से थोड़ी देर पहले निकले हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र पांडे वो चंदौली से जीत कर आए हैं, चंदौली से दोबारा सांसद बनकर आए हैं, वो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। और तमाम वो पुराने चर्चित चेहरे जो नाम जो मोदी सरकार में हिस्सा रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर तमाम चर्चित नामों की बात करें तो हम जानते हैं थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद हों,
रामविलास पासवान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे तमाम नाम, स्मृति ईरानी, यहाँ थोड़ी देर पहले जो चाय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों को बुलाया था, यहाँ से निकले हैं। कुछ नए नामों में निश्चित तौर पर देखें, हम जानते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे थे कुछ समय के लिए, अगर आप पिछले 5 सालों में देखें, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप तौर पर जिम्मेदारी देकर उत्तर प्रदेश भेजा गया था। एक बार फिर यहाँ उन्हें बुलाया गया, संभावित मंत्री के तौर पर अब उनका नाम लिया जा सकता है। नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बिहार में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया, उजियारपुर से सांसद हैं, उन्हें बुलाया गया था। तो ये कुछ नए नाम हैं जो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, उन्हें यहाँ पर चाय के लिए बुलाया गया था। तो इस तरह से तमाम ऐसे नाम हैं, संतुलन बनाने की कोशिश है। पुराने चेहरे अगर आप देखें, जिसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले तमाम मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को जगह दी गई है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। जो संभावित मंत्रियों जो यहाँ पर चाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, उससे अगर देखें तो जो अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं। जी शैलेंद्र, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि आप बीजेपी भी कवर करते हैं। मुश्किल थोड़ा सवाल है, स्पेक्युलेटिव है। अमित शाह भी वहां मौजूद थे, आपको क्या लगता है किस कैपेसिटी में थे? बीजेपी प्रेसिडेंट के प्रोस्पेक्टिव मिनिस्टर की कैपेसिटी में थे? जी देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं, और इसकी पुष्टि जीतू बघानी जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तकरीबन 1 घंटे पहले फोटो डालकर कर दी है। बीजेपी के सूत्र भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल शपथ लेने वाला है, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी हिस्सा होंगे। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, और जिस तरह से जीतू बघानी जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर बताया है, बधाई दी है, एक मजबूत साथी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी। उससे माना जा रहा है कि वो जो मंत्रिमंडल आज शपथ लेने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। शैलेंद्र, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने एक चैनल पे बोलते हुए ये कहा कि कोई एक बर्थ, एक कैबिनेट बर्थ उनको मिलने की बात है उनकी पार्टी को। क्या गठबंधन के साथियों के लिए कहीं कोई संख्या भी सीमित रखी गई है? ये देखिए, संख्या गठबंधन के साथियों के लिए सीमित नहीं रखी गई, जो सूत्र बता रहे हैं। दरअसल सभी को एक जगह देने की कोशिश की जाएगी, जिसके संकेत स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने दिए थे कई बार अपने संबोधन में, कि किस तरह से एनडीए के साथ मजबूत एनडीए को लेकर आगे बढ़ा जाना है। जो सूत्र बता रहे हैं, हम जानते हैं कि एलजेपी से रामविलास पासवान यहाँ पर से थोड़ी देर पहले निकले हैं, उनका एक तरह से कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल जो 5 साल मंत्री भी रही अकाली दल कोटे से, उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ शिवसेना कोटे से भी एक मंत्री कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं अनुप्रिया पटेल अपना दल से मंत्री थी। अब ये देखना होगा कि अपना दल कोटे से भी वो इस बार शामिल होती हैं, या कोई अब और जो एनडीए के सहयोगी है उनसे और कितने मंत्री शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर पर कोई निश्चित कोटा नहीं रखा गया। कोशिश ये की गई है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो अंतिम दौर की बातचीत हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज सुबह, उसमें एनडीए के तमाम जो सहयोगी हैं, जो जीत कर आए हैं, उनको उनमें से सभी जितनी समुचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाए मंत्रिमंडल में। All right, Shailendra, please stay on the line. We also have Rajesh Raj who is joining us. Rajesh, Shailendra and Bikramjit told us a lot of names. You are also there at the LKM to the names that they've already revealed. Would you want to add that who all did you see there, and who could be prospective ministers in the Modi 2.0 government? जी अमृतपाल, यहाँ पर लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री आवास है, यहाँ से तमाम जो जिन मंत्रियों को शपथ लेना है, वो तमाम मंत्रीगण यहाँ से, जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, वो तमाम सांसद यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। और आपको कई नामों के बारे में हमारे कई संवाददाताओं ने आपको बताया कि ये तमाम जो बड़े नाम हैं वो यहाँ से निकले हैं। जो कुछ नए चेहरे हैं, उन नए चेहरों में बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नित्यानंद राय, उनका नाम शुमार है। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बिहार में बहुत जबरदस्त कामयाबी हाथ लगी है, और उस कामयाबी को सफलता में तब्दील करने का श्रेय जो है वो नित्यानंद राय को जाता है। नित्यानंद राय
की लीडरशिप में। और अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी कंस्टिट्यूंसी में जाकर कहा था प्रचार के दौरान कि वहां की जनता से उन्होंने कमिटमेंट किया था कि अगर नित्यानंद राय यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो हम निश्चित तौर पर इन्हें बड़ा नेता बनाएंगे, इन्हें कैबिनेट में शामिल करेंगे। तो अपने वादे को अमलीजामा पहनाते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने नित्यानंद राय का नाम जो है वो प्रस्तावित किया है। तमाम जो बड़े नाम हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो लगभग वही हैं। सिर्फ एक राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री जो है, निवर्तमान कृषि मंत्री, उनको बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया है। और कई ऐसे नाम हैं जिनको नहीं बाहर निकलते देखा गया है। लेकिन जो पुराने नाम हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात करें, हरदीप सिंह पुरी की बात करें, थावरचंद गहलोत की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, इन तमाम जो बड़े नाम थे वो सभी लोग जो हैं वो बाहर निकलते हुए देखे गए हैं। और ये सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचेंगे। जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी निकलते हुए नहीं देखे गए हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या कहीं पर उनको एकोमोडेट किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे चेहरे जो बड़े नाम हैं, जो अभी चाय के बुलावे पर नजर नहीं आए हैं, माना जा रहा है कि उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो है वो चुनाव होने हैं। और झारखंड की बात हुई तो मैं आपको बताऊं कि अर्जुन मुंडा जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन मुंडा जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले हैं। यानी कि अर्जुन मुंडा भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो अर्जुन मुंडा के रूप में झारखंड को भी एक जो है वो कद्दावर मंत्री मिलने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इसी साल झारखंड में चुनाव होने हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उन राज्यों पर फोकस किया जाए जहां पर चुनाव होने हैं। लिहाजा उन जगहों के लिए कई मंत्रियों को जो है वो जगह दी जा रही है। All right. Thank you, Rajesh and Shailendra, for joining us and giving us now Ritu, the focus shifts to the Rashtrapati Bhavan. Sorry, बिल्कुल। और जितने इनपुट्स अमृत वहां से हमें मिले हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग से जितने इनपुट्स अभी तक मिले हैं, उसमें कुछ नाम जरूर शामिल हुए हैं। लेकिन भट्टाचार्य जी, 2 चीजें जो साफ दिखाई दी, जैसे कि अभी राजेश बता रहे थे कि जेपी नड्डा वहां नहीं दिखाई दिए हैं अभी तक निकलते हुए, और अमित शाह का वहां होना। जेपी नड्डा को उनका कयास ये है कि संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। और यहाँ पर संभावित मंत्री सब प्रधानमंत्री निवास पे पहुंचे थे। तो ये दोनों चीजें बहुत कुछ संकेत दे रही हैं। बहुत संकेत दे रही हैं। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि अमित शाह के मंत्रिमंडल में होने के पूरे आभास दिख रहे हैं। और अगर वो मंत्रिमंडल में होते हैं तो 4 जो कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटीज के जो मंत्री होते हैं, उनमें से एक को ज़रूर उनको दिया जाएगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि उनके मंत्रिमंडल में होना एक मोदी 2 जो आप कह रहे हैं, मोदी 2 सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चेंज होगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पार्टी को एक नई गति, नई दिशा दी, वो किस तरह से सरकार में आकर वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब जो ऑब्जर्वर हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो उसको बहुत क्लोज भी देखेंगे। और जिस तरह से अमित शाह के नाम का भी जैसे इंगित मिल रहा है, उसमें ऐसे काफी लोग हैं जो इस वक्त उनके नाम नहीं आए हैं। अंतिम में वो नाम आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे मुझे अभी तक मेनका गांधी का नाम नहीं दिखा। ओके। तो और वो